everyone, how are you all doing? I hope you are doing good. Today we're going to start with chapter 10 of your science book of class 2. The name of our chapter is water, right? So now let's read this chapter and look into it, what we have. Water is essential for all living beings. Both plants and animals need water to do their tasks. Water is a gift of nature to us. It is a very precious natural resource. So, we all know that water हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है. Water is something that we need every day. We can't live without water. No human, no animal can live without water, and even plants. Right? Now let's see the sources of water कि हमें water कहाँ से मिल सकती है. Right? Rain is the main source of water on the earth. The water we get from rain is called rainwater. जो water हमें rain से मिलता है ना, उसको हम rain water बोलते हैं. और वही रेन वाटर डिफरेंट चीज़ों में हम उन्हें स्टोर करते हैं, राइट? या फिर रिवर्स और लेक्स वगैरह में वो स्टोर होता है और फिर हम उसे कंज्यूम कर पाते हैं. फिल्टर्ड होगी ऑब्वियसली. नाउ डैम्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स एंड कैनल्स आर ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर. तो देख सकते हैं ये सारे डैम्स, वेल्स, ये सब ह्यूमन ने ही तो बनाए हैं. रेन वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, बट ऑल दीज अदर्स डैम्स, वेल्स, ये सारे ह्यूमंस ने बनाए हैं. सो दीज आर व्हाट? These are man-made sources of water, human-made sources of water. Now, some rainwater seep into the soil and rocks. This is called groundwater. अब कुछ जो rainwater है वो rocks के अंदर और ground के अंदर absorb हो जाता है. उसको हम क्या बोलते हैं? That is known as groundwater, right? We can get groundwater by digging wells and setting up hand pumps and tube wells. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. हमारे पास ये एक पिक्चर है जिसके अंदर आपको एक एक्टिविटी करनी है. यू हैव टू हेल्प द थर्स्टी काउ टू रीच द पॉन्ड. इस काउ को आपको पॉन्ड तक पहुंचाना है. आप कैसे पहुंचाएंगे? कैन यू ट्राई दिस योरसेल्फ? राइट, यू कैन ट्राई दिस योरसेल्फ. इट इज जस्ट लाइक अ गेम. आप ये खुद से करें. नाउ वी विल सी ड्रिंकिंग वाटर क्या है. वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज नॉट सेफ टू ड्रिंक. हम अगर कहीं से भी पानी पी लेते हैं तो वो सेफ नहीं होता, राइट? हमें देख के पीना चाहिए पानी की. वी आर हैविंग filtered water, we are having boiled water, right? Water of lakes, rivers, ponds and wells may not always be clean. Dirty water contains germs which can cause many diseases. जो dirty water होता है वो बहुत सारे diseases पहुंचा सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे diseases हो सकते हैं आपको dirty water से. क्या diseases हो सकते हैं? राइट, आपको टाइफॉइड हो सकता है, आपको मलेरिया हो सकता है, आपको फूड इन्फेक्शन हो सकता है, आपको स्टमक पॉइजनिंग हो सकती है if you will have this type of dirty water. Now we can make water bodies safe in 2 ways. किस तरीके से water bodies को सेव कर सकते हैं वो पढ़ते हैं. We should not throw garbage in ponds, lakes or rivers. हमें ponds में, rivers में, lakes में बिल्कुल भी garbage नहीं डालना चाहिए. We should keep them clean. We should never wash clothes or bathe animals in water bodies. हमें कभी भी अपने clothes को और water animals जो animals हैं उन्हें water bodies के अंदर bathe नहीं कराना चाहिए या फिर हमें अपने personal use के लिए water bodies को use नहीं करना चाहिए. Okay, now making water drinkable. Water, there are various methods by which we can make water drinkable. बहुत सारे methods हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, जिनसे आप पानी को साफ बना सकते हैं. अगर आप पानी को बॉईल करके रखेंगे तो all the germs from the water are going to vanish and आप अच्छा पानी पिएंगे. So you should always, if you are having tap water by any chance, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, so make sure कि आप उसे बॉईल करके ही कंज्यूम करें. Now people make water filters and purifiers at home. सबके घर में I am sure अब water filters और purifiers तो होंगे. हम सब अपने घर में water purifiers लगाते हैं so that हमारा जो water है वो filter होके हमारे पास आए, हम clean water consume कर पाए. It is important to store drinking water in clean containers. Containers should have lids. ध्यान रखिए जब भी आप वाटर को स्टोर करिए तो ऐसे कंटेनर्स में करिए जिसके लिड्स हो. आप अगर ओपनली वाटर को रखेंगे तो उसके अंदर कोई इंसेक्ट या जर्म्स वगैरह आ सकते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव स्टोरिंग वाटर. आप वाटर को स्टोर कैसे कर सकते हैं अपने हाउसेस वगैरह. We should always store water in closed containers. हमने अभी लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा, हमें वाटर को closed containers में रखना चाहिए, बंद, जिसकी कोई lid हो. ठीक है, now drums, tanks and buckets. We should always use clean containers to store water. आपको बिल्कुल clean containers यूज करने हैं. आप drums यूज कर सकते हैं, tanks यूज कर सकते हैं और bucket भी यूज कर सकते हैं जिसकी lid हो. Now, do you know that 70% of our body is
वाटर, राइट। हमारी जो बॉडी है वो 70% पानी से बनी है, ठीक है। चलिए, नाउ वी हैव सेविंग वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है पानी को सेव करना। अगर आप पानी सेव नहीं करेंगे तो एक दिन फॉर श्योर ऐसा आएगा जब हमारे पास पानी नहीं होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये क्यों कह रही है, इतना सा पानी अगर हम वेस्ट कर देंगे तो कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं होगा, पर होगा। आपको ध्यान रखना है, छोटा सा चेंज भी बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। आपको वो चेंज लाना है, आपको वाटर बचाना है, तभी आप एक स्टेप आगे जाएंगे फ्यूचर में वाटर को कंज्यूम करने के लिए। तो जब भी आप टैप यूज करें तो उसे माइंडफुली यूज करिए, राइट। जब भी आप अपनी टूथपेस्ट अप्लाई कर रहे हो या फिर आप सोप से अपने हैंड्स को स्क्रब कर रहे हो, तब तक टैप को बंद कर दीजिए। जब आपको टैप का यूज करना हो तभी आप वाटर को यूज करिए और टैप का यूज करिए। We should wash our fruits and vegetables in a container instead of running water, right? हमें अपने कंटेनर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को साफ करना चाहिए और यूज वाटर व्हेनेवर पॉसिबल। जब भी पॉसिबल हो तब आप यूज करिए और उसको रीयूज करिए। जब जब आप ट्राई कर सकते हैं उसे रीयूज करिए। जैसे आई विल टेल यू एन एग्जांपल। आप एक कंटेनर लीजिए, जो भी आपके घर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आए हैं उन्हें उस कंटेनर में डाल के वॉश कर लीजिए, राइट। आपने पानी बचाया, राइट। फ्लोइंग वाटर से धोने से अच्छा तो यही है, कंटेनर में धो लीजिए, फिर उस वाटर को जाके अपने प्लांट्स में डाल दीजिए। सी, हमने किस तरीके से रीयूज करा पानी को। अगर आप रनिंग वाटर से करते तो आपके फ्रूट्स भी अच्छे से वॉश नहीं होते और आप वेस्ट भी करते वाटर। सो इस तरीके से अपने वाटर को आपको रीयूज करना है। लीकिंग टैप्स को कहीं भी आपको देखिए टैप खुला हुआ है, बी इट इन एनी हाउस, इन योर स्कूल और नॉर्मल समवेयर इन योर प्लेग्राउंड फॉर एग्जाम्पल, वहाँ का टैप खुला हुआ है तो आप खुद उसे जाके बंद कर दीजिए, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिवर्स को, ओशंस को, सीज को में कुछ भी गार्बेज वगैरह नहीं डालिए। दैट इज द बेस्ट वे टू सेव वाटर। नाउ स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जैसे आइस होती है, हम जब पानी को जमा देते हैं तो आइस बन जाती है, तो वो सॉलिड स्टेट है। लिक्विड स्टेट क्या है, जब वो जो हम पानी पीते हैं वो लिक्विड स्टेट तो है। और गैस स्टेट क्या है, जो हम जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी को बॉईल करते हैं तो धुआं निकलता है ना पानी में से, उसको धुआं नहीं बोलते बट हमें ऐसा लगता है वो धुआं निकल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। तो दैट इज गैस। सो व्हेन यू हीट आइस इट चेंजेस इनटू वाटर। जब आप आइस को हीट करते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है, राइट। ऑन हीटिंग वाटर वेपर्स आर फॉर्म्ड। जैसे ही पानी को हीट करते हैं तो वेपर्स फॉर्म हो जाते हैं। When water vapors are cooled, they change into water. When water is kept in the freezer, it changes into ice. जब आप पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो आइस में चेंज हो जाता है। पानी को अगर आप हीट करते हैं तो क्या होता है, वो वाटर वेपर में बदल जाता है। फर्स्ट वी हैव दिस प्रोसेस जिसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो वो ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर में चेंज होगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना एक पैन लिया, राइट। यू हैव टेकन अ पैन लाइक दिस। आई मेक अ बेटर पैन। यू टुक अ पैन। इस पैन के अंदर आपने वाटर डाल दिया, ठीक है, और आपने यहाँ पे गैस जला दी और यहाँ पे हीट करने के लिए इसको रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से इसमें से धुआं निकलेगा, इसे हम वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है। तो वही प्रोसेस जिसमें जो पानी है इस धुएं में चेंज हो रहा है, पानी वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम। हर टाइम इवेपोरेशन तो होता ही रहता है, राइट। बहुत सारी बारिश आई, राइट, आपके जो सारे रोड्स हैं सब कुछ बहुत गीला हो गया, वो सूखता कैसे है, सूखने को ही तो इवेपोरेशन बोलते हैं, क्योंकि सन उसे इवेपोरेट कर देता है, उस पानी को वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज कर देता है। नेक्स्ट वी हैव कंडेंसेशन। The process by which water vapors change into water is called condensation. तो वो प्रोसेस जब आप वाटर वेपर्स को दोबारा वाटर में चेंज करते हैं तो कंडेंसेशन होता है। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो वाटर है, राइट, बारिश हुई, सब कुछ सूख गया, इवेपोरेशन हो गई, दोबारा बारिश हुई, तो वो दोबारा बारिश होना इज कंडेंसेशन। जो वाटर वेपर्स वाटर में चेंज जब होंगे उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। चलिए हमारे पास आई गई वाटर साइकिल, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। When it's hot, water from the rivers, seas and lakes evaporate and changes into water vapors. Water vapors condense and form clouds. Clouds give us rain. तो देखिए, जब वाटर साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं तो आपको पता है जो ये सीज है, ये जो लेक्स है, रिवर्स है,
जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इनमें से पानी इवेपोरेट करने लग जाता है सन की वजह से। देखिए इवेपोरेशन हो जाता है, देखिए किस तरीके से एरोज बनाए हुए हैं ना। इवेपोरेशन होगा, वाटर वेपर की फॉर्म से ऊपर जाएगा, वो वाटर वेपर क्लाउड्स में जम जाएगा, क्लाउड्स में अपना घर बना लेगा। जैसे ही क्लाउड्स इतने हैवी हो जाएंगे कि वो और वेपर ले ही नहीं सकते, और वाटर वेपर ले ही नहीं सकते, तो वो एकदम कर जाएंगे बर्स्ट। उस बर्स्टिंग को क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिए, जब बिल्कुल एक्सटेंड हो जाएगा, बर्स्ट होते ही क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। जैसे ही वो पानी नीचे आ जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होना, ठीक है। तो दस वाटर फ्रॉम द अर्थ गोज अप, अर्थ से ऊपर गया एंड रेन के फॉर्म में नीचे आ गया। वही सेम होता है, साइकिल बन गई ना, अर्थ से ऊपर गया, घूम के फिर नीचे आ गया, बन गई ना साइकिल। तो इस साइकिल को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। चलिए अब करते हैं टिक द करेक्ट आंसर। वी नीड वाटर टू राइट और वॉश। वॉश। Rivers and lakes are natural. Dams are human-made. We should drink boiled water. हमें हमेशा boiled water पीना चाहिए. We should not waste water. हमें water को बिल्कुल भी waste नहीं करना चाहिए. Okay. Next we have to fill in the blanks. Let's see here. First one. We use water for dash and dash, cooking and cleaning. यहाँ पे हम लिख देंगे cooking. लिख सकते हैं आप लोग भी. और क्लीन। कीप फिलिंग द एक्सरसाइजेस विद मी, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट, आइस मेल्ट्स ऑन, आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग। तो जब आप पानी को या फिर आइस को जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है? वो मेल्ट हो जाती है ना। जब आप आइस को हीट करते हैं तो वो मेल्ट ही होती है, तो यहाँ लिख देंगे हीटिंग। नेक्स्ट, बॉइलिंग वाटर किल्स द germs present in it. अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे तो सारे germs किल हो जाएंगे। At home we use a dash to get pure water. We use a purifier. ठीक है? चलिए, now we have unscramble the following letters to get the names of water resources. आपको ये unscramble करना है और water resources का नाम निकालना है। ठीक है? चलिए तो इसको ट्राई करते हैं। REAMST, तो क्या आप बता सकते हैं? Yes, very good. This is stream. STREAM. Streams में हम जमा करते हैं ना पानी को। सेकेंड देखते हैं, KEKAEL. Lake. Very good. LAKE. Lake. Lakes में भी पानी को हम स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्या है? REIVER. This is river. 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 And the last one is DONT. This is good, very good. POND, pond. Now we have matched the following. Wells. Wells are what? Can you all tell me? Yes. So wells are underground water. So let's just write here. 1. Second is rivers. Rivers क्या है? Natural source of water. 2. Third is forms or states of matter. Solid, liquid and gas. This is the third. Alright, now let's see fourth one. Kills germs. Boiling water. This is fourth. And fifth is stream. Gaseous form of water. Right? So I hope आपको ये समझ आया होगा match the following exercise. Right. So stay tuned for the next video. That's it for the day. I will meet you in the next one now. Till then, goodbye and take care.